Good morning students, this is Neha Jain from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we will start with the revision of chapter 1 Integers. Children, before starting with this chapter, I would like to throw light on the basic concepts of integers. So what are the points that we will discuss in the revision of this chapter? First of all, we will discuss about the definition of integers, that is what are integers, okay. Secondly, we will discuss regarding the properties of integers. Properties of integers with respect to addition, subtraction, multiplication and division. Now, what are the properties that we will discuss? We will discuss regarding closure property, second commutative property, associative property, and distributive property. Okay children, so we will discuss these points in brief as we have already given the detailed description in the previous video. So I will just discuss in the concise manner, okay. So first of all, what are integers? All the positive numbers and the negative numbers including 0 are integers. तो integers होते क्या हैं? जितने भी positive numbers हैं, negative numbers हैं और यदि हम उसको 0 को भी include कर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं integers. That is known as the integers. Now, how can we write the integers? It can be represented as a set of numbers. So, integers is represented by capital I or capital Z, which is equals to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. So these are integers, that is all the positive numbers and the negative numbers including 0 are known as integers, okay. Now as we have already just discussed in detail about the properties of integers, तो हमने पहले भी डिस्कस करा है कि properties of integers में क्या आती है. That is the first is the closure property. First is the closure property. Now, what is a closure property? क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? जैसे कि आप सभी को पता है, यदि a भी एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है and we add both this integer, then the answer will also be a integer. That is, if a is a integer, यदि a एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है, तो जब हम इन दोनों का सम लेंगे तो वो भी हमको एक इंटीजर ही मिलेगा. Is it clear? If a is an integer and b is also an integer, then sum of both the integers is also a integer. This is the closure property, okay. Now just move to the next property, that is known as the commutative property. That is commutative property.
अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सपोज अगेन इफ a is integer and b is also a integer, यदि a भी एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है तो a plus b is equal to b plus a, that is a plus b is equals to b plus a. This is known as the commutative property of integers. यदि a भी एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है तो यदि उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो उसका रिवर्स भी क्या आएगा? सेम होगा. एज फॉर एन एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 4 plus 1 which is also equals to 1 plus 4. So this is the commutative property of integers. Similarly, we can do in the case of multiplication, that is a into b is equal to b into a. A into b is equals to b into a. As for an example, 3 into 2 is equal to 2 into 3. 3 2 भी क्या होता है? 6 होता है और 2 3 भी क्या होता है? 6 होता है. That means integers are closed under addition and multiplication. So commutative property follows also for the case of addition as well as for the case of multiplication, but it is not same in the case of subtraction and the division. So now next property is the associative property. Now what does the associative property say? In the case of associative property, we used to do the pairing of integers. So next property is associative property. Associative property. Now first we will do in the case of addition. If I am writing the three integers a, b and c are integers. A, B, C are integers. Then a plus b plus c is equals to a plus b plus c. That means if you are just seeing the left hand side, first you will add the first two integers and then the result will be added to the third integer. Similarly, if you are just seeing towards the right hand side, first you will add the second and the third integer and then the result will be added to the first integer. For an example, you can just see over here 2 plus 3 plus 4 is equals to 2 plus 3 plus 4. So in either manner, you are just pairing the integer, answer will remain the same. So 2 plus 3 is 5 plus 4. So 5 plus 4 is equals to 9. Similarly, you can see towards the right hand side 2 plus. First of all, you will solve the bracket, you will just add the second and the third integer. 3 plus 4 is 7. So finally, 2 plus 7 comes out to be 9. So in this manner, left hand side is equals to right hand side. But this is not same in the case of subtraction. But we can do same in the case of multiplication. That is, we can do the pairing in either manner, but the result will remain the same. That is, A into B into C is equals to A into B into C. So now we can just check it. That is 2 into 3 into 4 is equals to 2 into 3 into 4. So first of all, we will take the product of the second and the third integer and then multiply with the first integer. So 2 into 3 4s are 12. So 2 into 12 is 24. Similarly, towards the right hand side, first we will take the product of the first two integers. That is 2 into 3 is 6 into 4. So 6 4s are 24. So we can see that associative property
is closed in the case of the addition as well as the multiplication. Now just see the distributive property. What does the distributive property say? Distributive property combines the operation of addition as well as the multiplication. So we'll discuss the next property, that is the distributive property. Distributive property. So what is the statement of it? That is A into B plus C is equal to A into B plus A into C. तो क्या दे रखा है? That is A into B plus C is equal to A into B plus A into C. That means जो भी टर्म ब्रैकेट के बाहर है उसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उन सब से होगा. That is first of all will multiply A with the B and after that we will multiply A into C. So A into B plus A into C. So this is the distributive property in the case of multiplication and addition. Same we can take for the case of the, that is the subtraction and multiplication. So we can also write that is A into B minus C. अब प्लस की जगह आपने क्या ले लिया है यहाँ पे? माइनस. So we can write here only the plus sign will change into minus. So again A into B minus A into C. That is the term before the bracket, that is term outside the bracket, will multiply it with the first term inside the bracket and then it will get multiplied with the second term inside the bracket, keeping the mathematical operation of subtraction as same. So these are the basic properties. Children, all the other properties we will discuss as we will just continue with the exercise. Okay, so these are some of the basic concepts. Now we'll start doing the exercise. So children, please get ready with your books and the rough copies. So we'll start doing the exercise now. So please take out exercise 1.1. Take out exercise 1.1, page number 4. I hope you all are ready, children. So just see exercise 1.1, page number 4. Okay. Now just see, I hope you all are ready with your books. See the exercise 1.1, question number 2. Please go through it. In a quiz, positive marks are given for the correct answers and the negative marks are given for the incorrect answers. क्या दे रखा है? एक क्विज है जिसमें पॉजिटिव मार्क्स किसके लिए दे रहे हैं हम? जो करेक्ट आंसर्स हैं, एंड नेगेटिव मार्किंग किसके लिए हो रही है? जो आंसर्स इनकरेक्ट हैं या गलत हैं. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? आपको सक्सेसिव राउंड्स के स्कोर दे रखे हैं और आपको उसका पूरा कंप्लीटली स्कोर एट दी एंड बताना है. तो क्या करेंगे? जितने भी स्कोर आपको दे रखे हैं उन सबको हम ऐड करेंगे. इज इट क्लियर? सो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, दैट इज सॉल्यूशन 2. क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन. सो व्हाट इट इज बीइंग टोल्ड? सो वी कैन जस्ट राइट Jack's score in 5 successive rounds are, क्या क्या स्कोर दे रखे 5 सक्सेसिव राउंड्स के? 25, -5, -10, 15 and 10. So these are the scores of the Jack in the 5 successive rounds, and you have to find the total of these scores. So we can just write it down here. The total score
total score of Jack is equal to, क्या होगा, आप सारे स्कोर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दैट इज 25 प्लस -5। जब भी कोई इंटीजर नेगेटिव दे रखा है, इट्स बेटर प्रैक्टिस टू राइट इट इन द ब्रैकेट्स। जब भी कोई नेगेटिव इंटीजर है तो आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इज इट क्लियर? प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। As you know children, the property of addition and subtraction of integers, क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में? यदि फर्स्ट नंबर, विल जस्ट डिस्कस इन ब्रीफ, यदि कोई नंबर फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है, सपोज करो 5 है, दूसरा इंटीजर भी क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, यू विल गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। इज इट क्लियर? अब सपोज करो फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर यदि आपके पास पॉजिटिव है, फर्स्ट इंटीजर इज नेगेटिव एंड द सेकेंड इंटीजर इज पॉजिटिव, तो जब भी ऑल्टरनेटिव साइन देती है, यदि एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो उसके केस में जब भी अनलाइक साइन से, देन यू विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। जब भी अनलाइक साइन है तो उस केस में आप डिफरेंस लेंगे और साइन हमेशा किसकी होगी, जो नंबर बड़ा है उसके फ्रंट में, उसके आगे जो साइन है वो रिटेन होगी। तो यू कैन सी है -5 + 6, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6 - 5 इज इक्वल्स टू 1। 6 - 5 is equals to 1, and you can see here that which is the greater number, 6 is the greater number, and what is the sign in front of 6, that is plus, so it will be +1। अब सपोज करो, यदि सपोज करो फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव, if the first integer is positive and the second integer is negative, अगेन अब क्या हो गई, अनलाइक साइन हो गई, पहला इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तो उस केस में अगेन क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे बताया है कि जब भी अनलाइक साइन होगी तो आप दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 5 - 6 दैट इज 1। बट अब क्वेश्चन इसके साइन कौन सी आएगी इसके आगे, तो बड़ा नंबर क्या है, विच इज़ द ग्रेटर नंबर, 6 इज द ग्रेटर नंबर, और इसके पहले साइन क्या लगा हुआ है, माइनस, सो इट विल बी -1। ओके, नाउ अब सपोज करो दोनों ही नंबर्स आपके पास, दोनों इंटीजर्स क्या नेगेटिव है, -5 - 6, that is when both the integers are negative, then you will perform the operation of addition। उस केस में आप दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे और साइन क्या होगी, दैट इज नेगेटिव, तो 6 + 5 इज 11, बट चूंकि दोनों ही नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी, -11। सो कीपिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन माइंड, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमको क्या करना था, जैक का स्कोर फाइंड आउट करना था, दैट मीन्स विल एड अप ऑल द स्कोर एंड फाइंड द स्कोर एट द एंड। सो यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, 25 प्लस इंटू माइनस इज -5, अगेन प्लस इंटू माइनस इज -10 प्लस 15 प्लस 10। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे -10 है और यहाँ पे +10 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ 25 -5 और +15 है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट टेक द डिफरेंस ऑफ द टू, तो 15 - 5 क्या हो गया, दैट इज +10। नाउ व्हाट आर द रिमेनिंग इंटीजर्स, दैट इज 25 + 10 which comes out to be 35। so what is the score of Jack at the end? So we can write that Jack's score at the end is 35। This is the answer for the first question. I hope children that you are able to understood. Okay, now we'll just switch on to the next question. Now just see the second question. You can just see the question number 3 over here. Okay, just go through the question children fast. Now let's start with the question number 3. Children, please go through the question. So what is the next question? At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday, and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius.
व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। नाउ व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मंडे को टेम्परेचर कितना था -5 डिग्री सेल्सियस। फिर ट्यूसडे को टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप हो गया, कितने से ड्रॉप हुआ, दैट इज़ 2 डिग्री सेल्सियस। चूँकि ड्रॉप हुआ है दैट इट विल बी जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन। यदि ड्रॉप हुआ है टेम्परेचर तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से। नाउ what was the temperature of Srinagar on Tuesday? So first of all we'll just write down the temperature, that is temperature of Srinagar, temperature of Srinagar on Monday is equals to -5 degree Celsius. This was the temperature on Monday. Now temperature dropped on Tuesday. Temperature drop on Tuesday कितने से ड्रॉप हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस से। बिकॉज द टेम्परेचर हैज बीन ड्रॉप सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन, सो इट इज -2 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी हैव टू जस्ट find out the temperature on Tuesday. So temperature on Tuesday is equals to, क्या करेंगे हम दोनों टेम्परेचर को ऐड करेंगे, that is -5 plus -2 because temperature on Tuesday has been dropped by 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री से क्या हुआ, टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, तो फाइनल टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना हो जाएगा, दैट इज -5 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो -5 और -2 दैट इज -7 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज -7 डिग्री सेल्सियस। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या हो गया, रेज हो गया, कितने से बढ़ा है, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। सो ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अब बढ़ गया है। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। अब हमको वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालना है, तो ट्यूसडे तक हमारा टेम्परेचर कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस, और फिर वेडनेसडे को कितना बढ़ा है, 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अप हो गया है, बढ़ गया है। तो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम ट्यूसडे के टेम्परेचर को और जितना टेम्परेचर वेडनेसडे को बढ़ा है दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज -7 प्लस 4। सो -7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दैट इज देयर इज द अनलाइक साइंस, तो हम क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। सो इट विल बी -3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 7 - 4 कितना होगा, 3 होगा। विच इज़ द ग्रेटर नंबर, 7 इज़ द ग्रेटर नंबर, एंड व्हाट इज़ द साइन इन फ्रंट ऑफ 7, इट इज़ द माइनस। सो योर आंसर विल बी -3 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर कितना है ट्यूसडे को, -7 डिग्री सेल्सियस, एंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज -3 डिग्री सेल्सियस। आई होप चिल्ड्रन यू आर गेटिंग, you are able to understood. Now just see children, come to the next question, that is the question number 9. Just go through it, that we have to place the greater than, less than or equal to sign in the given questions. Okay, that means you have to draw the comparison in the questions. So start doing the 9th question. So please go through it. Question number 9. Now use the sign of greater than, less than or equal to in the box to make the statements true. अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं यू हैव टू ड्रॉ द कंपैरिजन। आपको कंपेयर करना है और उस बेसिस पे वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपको ग्रेटर देन, लेस देन और फिर इक्वल टू का साइन प्लेस करना है। सो विल जस्ट डू द ए पार्ट। व्हाट इज देयर इन द ए पार्ट, जस्ट सी -8 प्लस -4
-8 -4. ओके, नाउ यू हैव टू प्लेस द साइन. तो साइन प्लेस करने के पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा. सो एज यू कैन सी चिल्ड्रन, अब आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में. सपोज करो एक इंटीजर प्लस है और दूसरा भी प्लस है, और यदि आप इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, आंसर इज प्लस. यदि दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होता है. अब सपोज करो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है. इफ फर्स्ट इंटीजर इज पॉजिटिव एंड द अनदर इंटीजर इज नेगेटिव, देन व्हाट यू हैव टू डू, जब भी अनलाइक साइंस होती है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव होता है. सो प्लस इंटू माइनस इज ऑल्सो माइनस. अगेन फॉर द थर्ड केस, सपोज करो फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर है जो पॉजिटिव है. अब जब आप इसका प्रोडक्ट लोगे दैट इज माइनस इंटू प्लस, अगेन क्या है, अनलाइक साइंस है. तो जब हम अनलाइक साइंस का प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. सो माइनस इंटू प्लस इज ऑल्सो माइनस. अब दोनों ही क्या है, लाइक साइंस है. फर्स्ट इंटीजर भी आपके पास क्या है, नेगेटिव है, और दूसरा इंटीजर भी आपके पास क्या है, नेगेटिव है. सो व्हेन यू आर जस्ट टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों की साइन क्या है, एक है, माइनस माइनस, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास ऑल्टरनेटिव साइन से अनलाइक साइन है, यदि आप उसका प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव आता है. एंड व्हेन एवर यू आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ द लाइक साइंस, देन द आंसर इज ऑलवेज positive. Okay, so on this concept we'll just solve the question. So -8, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस. सो -4. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी में कि जब भी क्या होता है, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं और आपको उसको क्या करना पड़ता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे. सो 8 + 4 इज 12, और साइन क्या आएगी, माइनस. So here it is -12. Now come to the right hand side. Here it is -8. ठीक है, माइनस इंटू माइनस दोनों क्या है, लाइक साइन से. तो जब भी हम लाइक साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव. आई ऑलरेडी शोन यू. सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस. सो -8 + 4. अब एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी विल जस्ट चेक द डिफरेंस. जब एक नेगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या लेंगे, उसको माइनस करेंगे. सो 8 - 4 इज 4. बट 8 क्या है, इट इज़ अ ग्रेटर इंटीजर एंड साइन इन फ्रंट ऑफ 8 इज माइनस. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -4. अब एक तरफ है -12 और दूसरा है -4, तो क्या साइन आना चाहिए यहाँ पे, ऑब्वियसली -12 इज लेस देन -4. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, नाउ just see one more part over here children. We will just do the B part of the same question, that is -3 + 7 -19, and here it is 15 -8 + -9. अगेन यू हैव टू सॉल्व इन द सेम मैनर. ऐसे ही करना है आपको. तो -3 + 7 क्या होगा, डेट इज़ 4. आपने क्या किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया है, और 7 क्या ग्रेटर इंटीजर है एंड साइन इज पॉजिटिव, सो इट विल बी +4. 4 - 19. ओके, सो ये इट विल बी -15, क्योंकि 19 क्या है, ग्रेटर इंटीजर है, और साइन क्या है उसके फ्रंट में, माइनस. सो इट इज़ -15. नाउ जस्ट सी द राइट हैंड साइड. 15 - 8 कितना होगा, 7. प्लस इंटू माइनस इज -9. 7 - 9, एक पॉजिटिव एक दूसरा नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम, वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस. सो 7 - 9 इज 2, बट 9 इज द ग्रेटर नंबर एंड साइन इन फ्रंट ऑफ 9 इज माइनस. तो अब कौन सा नंबर बड़ा होगा, ऑब्वियसली -2 इज ग्रेटर, दैट मीन्स -15 इज लेस देन -2. So I hope children that you are clear with the concepts of the addition and subtraction and multiplicative property of the integers. Now just switch on to the next exercise, that is exercise 1.2, page number 9. So we'll just start with the next exercise.
that is 1.2. Please open your books. Take out page number 9. We'll start the questions now. So just see children, first question. Go through the first question. Page number 9. Exercise 1.2. Now just see the first question. Write down a pair of integers whose sum is -7. हमको ऐसा pair of integers लिखना है जिसका sum क्या है, -7 है. This is the A part. Sum is -7. You have to write the pair of integers जिसका sum क्या है, -7 है. बार बार मैं sum को emphasize कर रही हूँ. यहाँ पे sum दे रखा है, मतलब जो बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन आप यूज़ करेंगे that should be a sign of plus. यदि यहाँ पे आपने, भले आपका आंसर करेक्ट आ रहा है बट यू हैव नॉट प्लेस द साइन ऑफ प्लस, देन योर आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो विल जस्ट सी ओवर हियर. हमको अब क्या करना है, एक पैर निकालना है. तो हम कैसे लिख सकते हैं, -3 प्लस -4. ओके. अब सपोज करो यदि डायरेक्टली आपने इसको ऐसे लिखा होता, -3 -4, यू कैन सी दैट इन बोथ द केसेस आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे. इन बोथ द केसेस आंसर कम आउट टू बी द सेम. यहाँ पे भी -7 आएगा और जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर -7 आएगा. बट दिस वन इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमको क्या बोला था कि हमें एक ऐसा पैर बनाना है जिसका सम -7 है. मतलब बीच में जो हमारा साइन होना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होना चाहिए वो एडिशन का होना चाहिए. इज इट क्लियर? So -3 प्लस -4 विच इज़ इक्वल्स टू -7. तो ऐसे आप बहुत सारे पैर्स बना सकते हैं. एज फॉर एन एग्जाम्पल, -6 प्लस -1, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -7 आएगा. सो दिस इज़ द वे. तो बेसिक चीज़ आपको ये याद रखनी कि यदि यहाँ पे सम दे रखा है तो आपको बीच में प्लस लगाना पड़ेगा. यदि यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है तो यहाँ पे साइन आपकी माइनस की होनी चाहिए. Is it clear? Okay. Now just see children, the next B part, that the difference is -10. अब sum की जगह हम यहाँ पे difference लेंगे. Okay? That is difference is -10. Just see the B part children. Difference is -10. मतलब जो बीच में आप साइन लोगे वो माइनस का लोगे. तो हम कैसे लिख सकते हैं, -20 ओके -10. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस बोला है इसलिए हमने यहाँ पे साइन माइनस का लगाया है. यदि आपने इसको -20 प्लस 10 लिखा होता, इफ़ यू हैव जस्ट रिटन इन दिस मैनर दैट इज़ -20 प्लस 10, तब भी आपका आंसर तो -10 आएगा. बट दिस इज स्टिल रॉन्ग मेथड. चूँकि डिफरेंस बोला है इसका मतलब आपको यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करना है. ओके. सो -20 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो -20 प्लस 10, सो योर आंसर इज -10. सो इन दिस मैनर डिफरेंस के लिए भी आप बहुत सारे पैर्स लगा सकते हैं. आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये वाला नंबर ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए, -30 ले सकते हो, -20. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -30 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो अगेन -30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, -10. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट गो थ्रू इट. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू. आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू. सो जस्ट सी द some questions that we will solve over here. Question number 4, just go through it. Just try to solve on your own. Just see question number 4. Question number 4, just see the second part. Okay, there are number of parts are there, but we will just use the selected parts. Other you can just practice on your own. So -53 plus dash इज इक्वल्स टू -53. अब इसका मतलब क्या है कि हम -53 में क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर -53 आ जाए. इट्स क्वाइट ईजी. क्या कर सकते हैं,
जो नंबर है वही आ रहा है, जो इंटीजर है वही आ रहा है, दैट इज -53 प्लस 0 इज इक्वल टू -53। इसका मतलब जब आप -53 में 0 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर -53 आएगा। ओके, नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर चिल्ड्रन, जस्ट सी द फोर्थ पार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, 13 प्लस -12 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 13 प्लस -12 प्लस -7। आपको ब्लैंक को फिलअप करना है। यू कैन सी ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, पैरिंग कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स की पैरिंग करी है, एंड यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड कि राइट हैंड साइड पे आपने सेकेंड और थर्ड डिजिट की पैरिंग करी, दैट इज द लास्ट 2 डिजिट। तो अब कौन सा डिजिट मिसिंग है यहाँ पे, 30 -12, कौन सा मिसिंग है, -7। So your answer here is -7. Is it easy students to understand now? Okay. Now children, just move to the next exercise, that is the exercise 1.3. Okay. We'll solve some questions of the exercise 1.3, that is page number 21. Please take out page number 21 now. Okay. Just go through some questions. We'll solve the questions. Okay. Before that, just read it properly. I hope you are solving with me, okay? If you are solving, this will make much easier for you to solve the questions, okay? Now just see children, page number 21, exercise 1.3. Now just see the first question, find each of the following products. अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। पर प्रोडक्ट फाइंड करने से मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्योंकि हमने इंटीजर्स में क्या पढ़ी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, डैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज़ वेयर एवर इट इज़ एप्लीकेबल। जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। इज इट क्लियर? अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो हम रूटीन लाइफ में करते ही हैं। सो जस्ट सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जी पार्ट। क्वेश्चन 1 जी पार्ट, व्हाट इज दैट, दैट इज 9 इंटू -3 इंटू -6। आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को लगा सकते हैं, दैट इज़ माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर्स, दैट इज़ 9, 3 6 क्या होता है, 18 होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 6 18, और 18 9 क्या होता है, 162। सो इन दिस वे यू हैव टू यूज़ द प्रॉपर्टीज़। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट सी द जे पार्ट ओवर हियर, सी द जे पार्ट, व्हाट इज दैट, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। तो हम दो की पैरिंग करके हम वी कैन सॉल्व इट। अगेन यू कैन सी माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 3 6 18, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इट विल रिमेन एज इट इज। सिमिलरली ये ऑल्सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ओके। सो 2 1 2, सो 18 2 36। सो दिस इज द आंसर, ओके। नाउ जस्ट सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट। We'll solve question number 3 second part, which is very much easy. Just read the question. So just see question number 3. We'll solve the second part of it, okay? Second part, that is the A1 -22. First of all, go through the question. क्या दे रखा है आपको? Determine the integer whose product with -1 is -2. आपको एक ऐसा इंटीजर फाइंड आउट करना है कि जब आप उसका -1 से प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -22। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको ये आंसर मिल जाए,
तो ये हमारे पास -1 है। यदि हम इसको सिर्फ 22 से मल्टीप्लाई कर दें सो वी विल गेट द आंसर एज -22। तो हमारा आंसर क्या हो गया 22। क्या पूछा गया है आपसे कि -1 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए -22। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है, आपको पता है कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। दैट मीन्स दिस 22 व्हेन यू विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय -1 you will get the answer as -22. Okay, now just see children, that is the question number 6. Question number 6 of this exercise. Just go through it well, read it properly. I will just make you understand the concept. Question number 6. Now, a certain freezing process requires that the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। क्या दे रखा है कि जो फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि सपोज करो आपके रूम में एसी लगा हुआ है और इनिशियली उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, जस्ट सपोज इट। अब क्या बोल रहा है कि पर आवर जो है टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। हम एसी क्यों चलाते हैं, ताकि रूम का टेम्परेचर क्या हो, डाउन हो और अच्छे से कूलिंग हो। तो हर घंटे में कितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है, डेट इज़ 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब फाइनली क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। मतलब यदि फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो 10 आवर्स के बाद फाइनल टेम्परेचर रूम का क्या होगा। तो इस क्वाइट ऑब्वियस है कि यदि 40 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें इनिशियल टेम्परेचर क्या दे रखा है, सपोज करो क्या दे रखा है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है। अब पर आवर टेम्परेचर कितना कम हो रहा है, दैट इज द टेम्परेचर ड्रॉप पर आवर इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पहले भी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जब भी ड्रॉप होता है, कोई चीज़ ड्रॉप हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हम उसको नेगेटिव साइन से क्या करते हैं, शो करते हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, कि 10 आवर्स के बाद फाइनली उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। सो वी कैन जस्ट राइट दैट टेम्परेचर आफ्टर 10 hours when the freezing process begins is equals to, तो जब 1 घंटे में टेम्परेचर कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है, तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, डेट इज 10 इंटू -5। तो कितना हो गया 10 आवर्स के बाद ड्रॉप, -50 डिग्री Celsius. So now final temperature is equals to, क्या करोगे आप, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस प्लस -50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। सो 40 माइनस 50, so when you solve it, it comes out to be -10 degrees Celsius. So final room temperature after 10 hours is equal to -10 degrees Celsius. Is it clear, students? Now just come to the last exercise, that is the exercise 1.4. Okay, just go through the question. Exercise 1.4. I hope you are solving, students. Now just see exercise 1.4. Exercise 1.4, page number 26. Page 26. Now just see question number first. Evaluate each of the following. You have to just evaluate the values for the given question. So question number first, just see the E part. Question first, E part 13 divided by
-2 + 1, दिस इज द क्वेश्चन। तो 13 क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो -2 + 1, सो 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1 कितना होगा, दैट इज -1। तो जब आप 13 को -1 से डिवाइड करोगे तो इस साइन को आप ऊपर शिफ्ट करते हो, दैट इज टुवर्ड्स द न्यूमरेटर। तो आंसर क्या आएगा आपका -13। ओके, नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन, just see the G part over here. Question number 1, G part. Now what is given over here? -31 divided by -30 plus -1. अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एज यू ऑल नो वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। सो -31 डिवाइडेड बाय, ओपन द ब्रैकेट, -30 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, दैट इज -1. सो -31 divided by -30 -1, both are negative, that means you have to add it, so it will be -31. जब दोनों ही नेगेटिव होते तो साइन भी क्या आती है, नेगेटिव। नाउ कैन जस्ट कट इट डाउन, -31 upon -31 which comes out to be 1. So this is the required answer. So children, whatever the concepts I've just told you, I hope you understood it well. Now based on these concepts you can just solve the practice questions. So these are some practice questions given over here. So children, what I have taught you, I hope you understood it well. So based on these concepts, these are some practice questions that you have to solve in the rough copy. Plus please go through the video also. So that's all for today. Do take good care of yourselves. Thank you.